the sector through the regular organization of promotional events and festivals across the UT. These initiatives create diverse livelihood opportunities by engaging event managers, transport operators, digital content creators, hospitality workers, guides, artisans, and other service providers. Such activities also contribute meaningfully to skill utilization, entrepreneurship development, and sustainable employment generation among the youth. In addition, the Tourism Department outsources on a regular basis various assets like cafeterias, huts, parking areas, entry ticketing, etc., which provides direct and indirect employment to youth. Further, the Government of Jammu and Kashmir has formally notified simplified procedural guidelines for the registration of homestays with the objective of encouraging community participation in tourism. This initiative is aimed not only at creating additional employment opportunities, but also at strengthening tourism infrastructure in border and rural areas, thereby promoting inclusive and regional balanced tourism development across the Union Territory. Part B. The registration and renewal of guest houses, hotels, homestays, travel agencies, adventure tour operators, and other tourism-related establishments are being carried out online. Further, the registration renewal process is covered under the Public Service Guarantee Act. Upon fulfillment of all requisite formalities as per the prescribed checklist, the applicant is assured of registration renewal within a stipulated time of 30 days through the online system. Since the rules governing the registration and renewal of all tourism units have been framed in 1978, as such, the Tourism Department is in the process of revising the Jammu and Kashmir tourist trade rules with a view to further simplify, rationalize, and streamline the registration and renewal framework for all tourism units. The proposed revisions aim at making the entire process more transparent, user-friendly, and strictly time-bound, thereby reducing procedural delays and improving ease of doing business in the tourism sector across the Union Territory. Thank you. ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने यहाँ तफसील दे दिया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा इसमें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 30 साल पहले की है, तो आज उनको कहा जाता है कि फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आज के तनाजुर में वो नहीं कर सकते हैं कि ऑब्जेक्शन NOC लाइए, आप म्यूनसिपलिटी से, आप डेवलपमेंट अथॉरिटी से लाइए, तो उसमें उनको वो जो जनाब जो कहना चाहते हैं, जो आपने कन्वे किया है मुझे रिप्लाई में, वो डिफीट हो जाता है, उसका बेसिकली जो इंटेंशन है वो नहीं पूरा हो जाता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा जनाब से कि उसमें उनको हिदायत करें, टूरिज्म डायरेक्टर को, कम्युनिटी को बुलाए, तमाम स्टेक होल्डर्स की, और उनको डायरेक्शन दे कि इनके जो मुश्किलात है वो दूर करें और जो कायदे के मुताबिक उनको काम करना है वो करें। सर, ऑनरेबल मेंबर साहब का मशवरा जो है बिल्कुल सही है। जैसे मैंने जवाब के जरिए कहा, जो रूल्स और जो फ्रेमवर्क है वो 1978 का बना हुआ है। तब से लेके आज तक तो इतना बदलाव आया है, इतने चेंजेस आए हैं जम्मू कश्मीर में भी और टूरिज्म सेक्टर में भी। इस लिहाज से देखा जाए तो ये इनमें बदलाव लाना हमें बहुत पहले करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन अब डिपार्टमेंट इस पे काम कर रही है और बहुत जल्दी हम नए गाइडलाइंस और जो है वो फ्रेम करके लोगों के सामने रख लेंगे। लेकिन तब तक जो सागर साहब का मशवरा रहा कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस के तहत थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, टाइमलाइंस जो हैं उनको फॉलो किया जाए, और अगर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के तहत इन चीज़ों को लाया गया है तो उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है, वो हम इंश्योर कर लेंगे। अल्ताफ साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, मैं ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर साहब से एक अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ। सर, ये जो NOC जो सागर साहब का सवाल है, सर ये सारी जगह है, पहलगाम में भी है, हर जगह पे है। सर, ये जो NOC है इनको रिन्यूअल के लिए 1 साल के लिए देते हैं, 6 महीने लगते हैं इनको ये NOC लाने में, फिर 1 साल। मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी, अगर 3 साल का इनका रिन्यूअल हो जाएगा, इनका जो फी है साल का जितना भी है इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 फी इनसे कलेक्ट किया जाता, तो ये जो रिन्यूअल है ये बार बार, चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, अगर पहलगाम वाले को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के NOC लानी है, सर उसको श्रीनगर जाना पड़ता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो इसमें है NOC लाने पड़ते हैं, ये 6 महीने लेता है। तो मेरी अदबन गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि इसका जो ये टेन्योर है, ये जो रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस है 1 साल के लिए, इसको 3 साल के लिए किया जाए और फीस बाज़ाब्ता तौर
चार्ज किया जाए उनसे। थैंक यू। आपको जवाब मिला है, नई गाइडलाइंस बन रही है। आप ये कहते हैं कि जो पुरानी गाइडलाइंस है वो आउटडेटेड हैं, अब नई बना रहे हैं, उसमें इन चीजों का ख्याल रखा जाए। इनको इंक्लूड, इस चीज को इंक्लूड किया जाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये जो अल्ताफ साहब ने बात उठाई बहुत सही है। आप किसी को कह रहे हो आप होटल चलाइए और उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ता है, 25 जगहों पे उसको वो कागज जाता है, गुरेज से आना पड़ता है बेचारे को श्रीनगर एनओसी लेने के लिए, क्या कहते हैं इसका, फायर सर्विस का। अच्छा, इतनी इसमें है। एक काम तो कह रहे हैं टूरिज्म इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लाए हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज की तरह ये फ्लोरिश हो जाए, क्योंकि कश्मीर में कोई इंडस्ट्री है नहीं। और उसमें फिर हम इतना ये कर रहे हैं, एक आदमी 4 कमरे अपने घर में टूरिस्ट के लिए बनाना चाहता है जिससे वो इनकम हासिल करे, उसके बाद उसको कहते हैं नहीं जी तू फायर सर्विस का ला, म्यूनिसिपैलिटी का ला, पटवारी का ला, तहसीलदार का ला, तो वो थक के फिर वो छोड़ देता है, कहता है नहीं मुझे नहीं करना है ये काम। इसलिए जो आपने बताया कि गाइडलाइन उसको नरम करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हाँ सलमान साहब। सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो टूरिज्म, सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो टूरिज्म मिनिस्टर भी है सर, इन्होंने बहुत मुझे लगता है सेटिस्फाइंग जवाब दिया। इसमें बाई लॉज में चेंज हो रहा है, लेकिन सर एक छोटा सा इश्यू से मैं ऐड करना चाहूंगा। जिन्होंने ऑलरेडी 30-40 साल से जो काम कर रहे हैं, गेस्ट हाउसेज है, होम स्टेज है, रेस्टोरेंट्स है, बुटीक होटल्स है, लॉजेस हैं, KZP रोड से लेके बिल्कुल खैरबंद तक, दाची गांव तक, सर उनको आज LCMA मांग रही है NOCs। वो LCMA के लिए NOCs कहां से लाएंगे? नए जो रूल्स बनेंगे अगर उनके लिए होगा वो ठीक है, लेकिन जो पुराने 40 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए NOCs मांगना बहुत मुश्किल है सर। अगर इन होटल्स में आज की डेट में कोई मरता है नेचुरल डेथ, तो उसको फिर बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ता है पुलिस की वजह से। तो मेहरबानी करके एक इश्यू जो है NOC LCMA की तरफ से जो 40 साल से स्ट्रक्चर से उनको नहीं मांगा जाना चाहिए। रणवीर साहब, यस, इसको क्या पूछ लो और इसको पूछ लो सर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके पर गेस्ट हाउसेस के बारे में बात की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाउस बोट्स और शिकाराज। उन लोगों का भी यही प्रॉब्लम है जो हाउस बोट्स है। क्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो ये नया ये बाय लॉज बना रहे हैं उसमें हाउस बोट्स और शिकाराज का भी करेंगे, ताकि जो उनका जो लाइसेंस, वो भी वही प्रॉब्लम है 1 साल का, उनका भी अगर 5 साल या 3 साल हो एटलीस्ट, क्योंकि अभी भी वो बेचारे हाउस बोट्स वाले अपना जो रिन्यूअल है वो लाइसेंस का नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो ध्यान में रखें। हाँ फारूक साहब। सर, मेरी गुजारिश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, जो वजीर सयाहत भी हैं, कि इसको सर NOCs जब सर PCB या फायर सर्विस या एनी डिपार्टमेंट, इट शुड बी टाइम बाउंड। अगर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उनको लिखिए दे शुड रिप्लाई विद इन 20 days, मेक देम आंसरेबल। वरना सर वो 6 महीने रखते हैं, दैट्स नॉट गुड। और दूसरी तजवीज है सर, जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है we should discourage registration of guest houses and hotels. सर उनके लिए बहुत ही मुसीबत बन जाती है कि उनका ट्रैफिक ज्यादा होता है, वो निकल नहीं पाते। लिहाजा सर होम स्टेज का जहां तक ताल्लुक है, इट शुड बी एनकरेज इन द ऑफ बीट डेस्टिनेशंस। वही सर मेरी गुजारिश। हाँ सैफुद्दीन साहब। गुजारिश है कि जो टूरिस्ट विलेजेस गए थे उसके लिए फंड्स भी वागुजार गए थे। टूरिस्ट विलेजेस इसमें बेहतर रहता, उनकी सबों की जो रजिस्ट्रेशन बनी हुई होती एज अ टूरिस्ट विलेज, तो उसका आगे से वो टूरिज्म डिपार्टमेंट उनको वहां पर टूरिस्ट रहने नहीं देते हैं। क्या वजह? अगर गवर्नमेंट ने उनको दिए हैं पैसे, किसी को कोठा, किसी को कोई मकान एज अ टूरिस्ट विलेज, चाहे दोदपात्री हो, चाहे तोसमैदान हो, यूसमर्ग हो, तो वहां पे उनको रहने क्यों नहीं देते हैं? किसी सिक्योरिटी रीजन के बहाने पर, कोई रजिस्ट्रेशन के बहाने पर। तो उन टूरिस्ट विलेजों का फंड्स जो वागुजार हुए उनका क्या हुआ? हाँ आप बोलिए। हाँ सर, भी बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे लाल द्रमन है, डल द्रमन है, देदरी है, देसा के इलाके हैं, गलाधार है। मैं ऑनरेबल CM साहब से ये जानना चाहूंगा कि क्या उन टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी कोई फंड्स प्रोवाइड किए हैं? कि मैंने डिमांड एक रखी थी कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बने, जो लोगों की एक देराना डिमांड है, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जानकारी दें कि उन स्पॉट्स को भी एक्सप्लोर किया जाए।
समय दिया, क्योंकि जम्मू संभाग का एकमात्र जो टूरिस्ट मोस्ट पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है पत्नीटॉप है, और उसके लिए मैंने लगातार जब से असेंबली का सेशन चला है तो मैंने कहा कि पत्नीटॉप जो पीडीए हमारी अथॉरिटी है, पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका मास्टर प्लान जो है ये 2000 में बना था, आज 26 साल हो गया जिसको रिव्यू नहीं किया। उसके नहीं रिव्यू होने की वजह से हमारा वो रेजिडेंशियल सर स्पीकर सर वहां पे आज इतनी दिक्कत है कि पिछले 15 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई नया होटल, कोई मकान, कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, कोई कमर्शियल अकोमोडेशन, इतनी सख्ती है। तो इसको रिव्यू, क्योंकि वैसे इसको आपने इसका टाइम था मेरे ख्याल में 5 साल रिव्यू करने का, अब 26 साल हो गए। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को जानना चाहूंगा कि कब तक इसका मास्टर प्लान का रिव्यू एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन सुनो, मेरी बात निजाम साहब मेरी बात भी सुनो ना। आपने इतनी बातें की, क्वेश्चन आवर में डिस्कशन करना जायज नहीं है। टूरिज्म की ग्रांट्स आ रही है, उस दिन आप तकरीर करो और ये जवाब दे देंगे। क्वेश्चन और हम अगर हर एक मेंबर चाहता है कि मैं इस पर बात करूं, फिर एक ही सवाल डिस्कस होगा, बाकी जो सवाल करने वाले हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। बताइए आप। एक जैसा कि सर टूरिज्म प्रमोशन की बात हो रही है यहाँ पे, आप वो भी जानते हैं सर, करनाल को कुदरत ने खूबसूरती से मालामाल करके रखा है। क्या ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर साहब के पास कोई प्रपोजल है कि करनाल को एज टूरिज्म हब डिक्लेयर किया जाए? थैंक यू सर। चलिए, आपने कुछ कहना चाहिए मिनिस्टर साहब। हाँ निजाम साहब, जस्ट हाफ अ मिनट, बस आधा सेकंड सर, हो गया आधा। ये सेंट्रल सर मेरी गुजारिश रहेगी चीफ मिनिस्टर साहब से, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये इशू उठाए। कुछ साइट्स क्लोज कर दी गई पोस्ट पहलगाम, उसमें से कुछ पे पाबंदी उठाई गई, कुछ पे नहीं, विच इज एन इम्पेडिमेंट इन प्रमोशन। मतलब हमारा इसमें वो भी क्लोज है अभी, वेयर देयर आर नो सिक्योरिटी, सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज। इट्स हाई टाइम दैट दिस इज टेकन अप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जनाब, आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है? जनाब स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर सागर साहब के ओरिजिनल क्वेश्चन का दायरा इतना बड़ा है कि टूरिज्म को लेके कोई भी इलाका और कोई भी हिस्सा जो है इस सवाल के साथ जोड़ा जा सकता है। अब ये सप्लीमेंट्रीज के दौरान कई सारे इश्यूज पे यहाँ सवाल उठाए गए, कोशिश करूंगा कि एक एक का यहाँ पे जवाब दूं। हालांकि जैसे आपने खुद कहा, ग्रांट्स के दौरान तफसीलन डिपार्टमेंट पे बहस होगी। पहली बात ये, डिपार्टमेंट में हम खुद मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कम्बरसम है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। मैं खुद शर्मिंदा हूं इस बात पे कि 1978 के बाद हमने इन रूल्स और प्रोसीजर्स को रिव्यू करने के बारे में सोचा नहीं। इसमें मैं भी गुनहगार हूं। 6 साल हमारी इससे पहले भी हुकूमत रही, हमने नहीं सोचा। आप लोग कहीं ना कहीं हुकूमत में बैठे रहे 78 के बाद, नहीं हुआ। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। इतना काफी नहीं है कि हम इसको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ जोड़ दें और कहें कि हमने अपना काम कर लिया है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो पेनल्टी लगती है वो इतना भी नहीं है कि अफसर पूरी तरह से डर जाए। हकीकत ये है, और ये हम मान के चलें, कि काफी हद तक जब ये एनओसीज जो हैं इनको जबरदस्ती रोका जाता है, मकसद यही है कि कहीं ना कहीं टेबल के नीचे से अगर रिश्वत दिया जाए तो फाइल आगे जो है वो चलना शुरू हो जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम इतना सिंप्लीफाई करें कि उसकी गुंजाइश ही कम रहे। अब इसमें कई तरीके हैं, या सेल्फ डिक्लेरेशन का तरीका है जिस पे हम सोच सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद तरीका ये भी है कि डीम्ड ग्रांटेड, मतलब ये कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको इजाजत नहीं मिलती तो इट इज डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड, मतलब ये कि डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन दिया नहीं, उस पर हम गौर कर सकते हैं ताकि डिले ना हो। मकसद ये है कि प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो, क्योंकि टूरिज्म का हर इलाके से कहीं ना कहीं लेना देना है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब ऑनरेबल मेंबरों ने
पत्नी टॉप के हवाले से बात की, डोडा के हवाले से बात की, टंगधार के हवाले से बात की। हर इलाके में कहीं ना कहीं टूरिज्म प्रमोशन का पोटेंशियल है। अब हमारी कोशिश है कि इसको बढ़ावा मिले, इसको हम इंक्रीज कर लें, जिसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा इन गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स को जो है इनको बदला दिया जाएगा। ऑनरेबल एमएलए जडीबल ने शिकाराज और हाउस बोट्स की बात की। जब ये हम गाइडलाइंस लाएंगे तो पूरे टूरिज्म सेक्टर को इससे कवर करेंगे। होटल्स, होम स्टेज, जो बाकी हैं, हाउस बोट, शिकारा, टैक्सीज, बसेस, एंटायर ये जो है टूरिस्ट सेक्टर। और आखिर में पोस्ट पहलगाम के हवाले से जो ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर ने पूछा था, ये सही है स्पीकर साहब कि अभी भी हमारे कुछ इलाके जो हैं वो बंद हैं, जो मुझे लगता है अब उनको दोबारा खोलने का वक्त आ चुका है। हम गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस पे जो है हमारी बातचीत जारी है। कुछ ही दिनों में होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा है। मैं हाउस को अश्योर करता हूं और खासकर ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर को कि ये इशू क्लोजर ऑफ सम ऑफ द टूरिज्म स्पेसेस, इसका जरूर होम मिनिस्टर साहब से जब मेरी मुलाकात होगी तो इसका जरूर हम जिक्र कर लेंगे। आजाद शाहीन साहब। सर AQ नंबर 367, मिनिस्टर इन चार्ज टूरिज्म। AQ number 367. A. No, sir. B. No, sir. However, the government is examining a proposal regarding notification of new tourism-worthy areas in J&K, including the following areas of Ramban district: Gogadali, Natha Top, Dagan Top, Neel Top, Mahu, Sarvadhar, Pogal Paristan, Sargali Pogal, Chandrakot, Batni village. C. Developmental works have been taken up in the Banihal Gool constituency, keeping in view the feasibility reports for the financial year 2025-26. Rupees 117.27 lakhs have been allocated under capex budget for the development of tourism infrastructure in the Banihal Gool constituency. थैंक यू सो मच सर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सर एक दो बातों पे मैं ये कहूँगा कि एक तो सर हमारा तत्तापानी एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि जनाब ने उसमें यूटी कैपेक्स पे 3.25 करोड़ रुपया दिया। और अगर इसको हम टूरिस्ट मैप पे लाए सर, ये नेचुरल हमारा थेराप्यूटिक इसके वैल्यूज है। और इस साल वहाँ पे जो विजिटर्स, जो लोकल हमारा विजिटर आया वो 2 से 3 लाख के आसपास आया। अगर हम इसको टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ करें, एक तो जॉब क्रिएशन होगा और दूसरा सर वहाँ पे जो है लोगों की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। और सर एक और नील के हवाले से सर एक बात कहूंगा कि NHLML नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड का एक MOU हुआ था 23 अप्रैल 2022 को रोपवेज के मुतालिक, उस पर सर कोई हेडवे नहीं हुआ, वो नील एरिया के अंदर था। मेरी सर ये गुजारिश है कि अगर इसको रिवैलिडेट किया जाए, मैं जनाब के सामने उसकी कॉपी रखूंगा, अगर उसको रिवैलिडेट किया जाए तो वो हमारे उस पूरे इलाके पे टूरिज्म का एक बूस्ट मिलेगा। और सर जहाँ पे यह बात हुई क्लस्टर होम स्टेज की, बात बहुत जरूरी है सर। अगर होम स्टेज का क्लस्टर कायम किया जाए, उससे हमारे देहात में रहने वाले लोगों के जो है वो उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और उनकी माशी हालत में सुधार आएगा। और सर अप्रिशिएट करता हूँ जनाब को, आपने वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया झेलम में। मैं इसी तरह से गुजारिश करूंगा कि हमारे भी यहाँ चिनाब के अंदर, चिनाब और डोडा के साथ कनेक्ट करते हुए एक अगर वहां भी वाटर ट्रांसपोर्ट का कोई सिलसिला बने, हमारा एक बड़ा इजी एक्सेस हो जाता। बस आपका ये सजेशन ही सर ऑनरेबल मेंबर की तरफ से जो सुझाव आए हैं उन पे हम जरूर गौर करेंगे। इनका कहना सही है कि इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल है, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से हो। अब उन्होंने रोपवे की बात की, वो आप मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा, मैं उसको एग्जामिन करवा लूंगा। उन्होंने होम स्टे क्लस्टर्स के हवाले से बात की। अब होम स्टे एक बहुत अच्छा मॉडल है टूरिज्म को रिमोट एरियाज तक पहुंचाने का, लेकिन ये काफी नहीं है कि हम घर के बाहर होम स्टे का एक बोर्ड लगाए कि यहाँ 3 कमरे हैं और लोग ठहरना शुरू करेंगे। हमें घर का भी थोड़ा सा एक ख्याल रखना होगा। अक्सर बेशतर जो है हम सुनते हैं इस बारे में कि होम स्टे का बोर्ड जरूर लगा है, लेकिन घर में इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को ठहराने के बराबर है नहीं।
हम चाहते हैं कि जहां होम स्टे बने वहां कम से कम टूरिस्ट के मतलब का बाथरूम हो, सफाई हो, वहां बेडिंग, टॉवल वगैरह वो ठीक रखे जाएं, ताकि फिर उन जगहों को हम प्रमोट करें। लेकिन जो क्लस्टर की उन्होंने बात की, खासकर रिमोट एरियाज में जहां बड़े होटल बन नहीं सकते, जरूर इस पे हम पॉलिसी में जो है इसको शामिल कर लेंगे। थैंक यू। मिस देवयानी राणा, अच्छा वो नहीं, आप उसकी तरफ से पूछना चाहते हैं जी। सर AQ नंबर 1360। मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। So AQ number 1360, drug de-addiction services are being across the Union Territory of Jammu and Kashmir under the Health and Medical Education Department and the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Addiction treatment facilities are functional in all districts of Jammu and Kashmir and 9 districts of Jammu division with dedicated IPD beds and OPD services available to ensure comprehensive treatment and rehabilitation. Kashmir division, Sikkim is GMC Bimna, Srinagar, GMC Anantnag, GMC Baramulla, GMC Hindwara, District Hospital Kulgam, District Hospital Shupayan, District Hospital Pulwama, District Hospital Badgam, District Hospital Gandarbal, District Hospital Bandipora. Overall status as of 2025, 11 ATFs are functional in Kashmir division, providing both OPD and IPD services. Jammu division, GMC Doda, GMC Jammu, GMC Katwa, GMC AH Rajouri, GMC AH Udhampur, GMC District Hospital Kashtawar, District Hospital Poonch, District Hospital Ramban, District Hospital Riyasi, DH Samba, functional on OPD basis. Private NGO based Kashmir division, Agaz DDC Bagi Mehtab Srinagar, Grooming DDC Padshahi Bagh, Shafa DDC Lawai-Pura. NGO government aided center are being operated under the Social Welfare Department. Jammu Division Parivartan Foundation De-Addiction, Rehabilitation and Mental Health Care Center. Help Psychiatry Center Jammu. Mind Care Neuro Psychiatric Clinic Katwa. UT wide coverage. De-addiction OPD services functional in all 20 districts of Jammu and Kashmir, ensuring access to counseling and treatment. IPD services available in all 9 government medical colleges, GMCs, catering out to both male and female patients. Specialist support psychiatrists are posted in all GMCs to provide clinical oversight. Summary: Kashmir Division 11 ATFs functional plus 6 IPD beds per district hospital. Jammu Division 9 ATFs functional, 1 sanction but pending. UT-wide OPD services in all districts. IPD services in all GMCs. Psychiatrists available. Policy framework. मिनिस्टर साहिबा, मैडम, इसको हम Initiatives. सर ये हो गया, complete हो गया. लंबा है, हो गया. बहुत ज्यादा लंबा है, अभी 2-3 पेजेस है। इसको हम पढ़ा हुआ तस्वर करेंगे, ये पूछेंगे सवाल, पूछे। देखिए सर, जो रेलिवेंट पार्ट था वो ऑनरेबल मिनिस्टर ने और डिपार्टमेंट ने अच्छा जवाब इसका दिया है, लेकिन इसलिए शुरू में ऑनरेबल मिनिस्टर भी पढ़ना चाहती थी और हम भी चाहते थे कि पूरा हाउस, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है हमारा। यहाँ जो फिगर्स हैं वो हॉस्पिटल के दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम सोसाइटी में देखेंगे तो इन लैक्स में है और ये कंसर्न का विषय है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहूंगा कि हम क्या अपनी इंडोर कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मेरा पहला सप्लीमेंट्री है कि क्या हम अपनी, क्योंकि जब इन लैक्स में है, मैं यहां कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, मुझे लगता है 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं इसमें मुब्तला हो गए हैं।
कोई ऐसा घर नहीं मिलता है, मैं जम्मू की भी बात करूंगा, तो क्या हम एक तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं और अपने और इंडोर को कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं सो दैट कि उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिले और रिहैबिलिटेट करें? पहले तो ये जवाब दे देना, इनको जवाब दे देना। सर, ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा है कि ये सही बात है, कंसर्न तो सही है, क्योंकि ड्रग्स की बीमारी जो है एक ऐसी वबा है जिसने जनरेशन्स को तबाह किया हुआ है। सरकार में इसका ऑलरेडी कंसर्न है, और जैसे हमने ऑलरेडी आपने जो पूछा था सवाल में कि सरकार क्या क्या कर रही है, अभी तक वो इन डिटेल हमने जवाब दे दिया है। लेकिन आप पूछते हैं कि ये जो ओपीडी फैसिलिटीज़ है या आईपीडी है उसको आप बढ़ाना चाहेंगे आगे, ये तो ज़रूरी, क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट्स आते भी हैं, अभी तादाद बहुत ज़्यादा है, फिगर्स में नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे हर घर में ये वबा जो है फैल चुकी है। और दूसरा जो है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रूल्स जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, और लॉ डिपार्टमेंट के पास वेट करने के लिए गए हैं, वो भी आ जाएंगे, तो उसके बाद इस पे जो है और काम करना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक आपने आईपीडी फैसिलिटीज़ की बात, ऑगमेंट करने की बात की है, वो मैंने कहा है, लेकिन उसके अलावा एनएचएम में जो है एडवर्टाइजमेंट आई हैं, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत काफ़ी हमारे पास कमी है, उसमें आ जाएंगे, और इसमें और ज़्यादा इलाज जो है वो बेहतर हो सकता है, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा मकसद यही है कि लोग इस वबा से दूर रहे। मसूदी साहब ने इस मसले को डील किया था पार्लियामेंट में भी, लिहाजा इनका हक बनता सवाल पूछना पहले, उसके बाद आपको भी सर थ्री टायर है हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो 3 टायर है। एक तो सर जो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी अस्पताल में मौजूद है, जैसे कि मुझे साहिबा ने जवाब दिया, हर जगह मौजूद है। उसके बाद दूसरा लेवल का है सर डी एडिक्शन सेंटर, उसमें और इसमें फर्क है। और फिर है रिहेबिलिटेशन, तो हमारा सारा फोकस रहता है एटीएफ पर। तो जनाब ये है कि फोकस जो दूसरा है फिर डी एडिक्शन का, एक तो हो गया ट्रीटमेंट इनिशियल होता है, तो जनाब इसमें दूसरा ये जनाब ये कि जो प्राइवेट हमारे एक्टर्स है वो बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, और उसका जो वहाँ पर वो चार्जेस करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, आमतौर पर पेंशनर्स होते हैं जिनके बच्चे इसमें मुब्तला हो जाते हैं, तो उनसे बिल्कुल एक प्यूनिटिव और एक कन्फिस्केटरी उनसे पैसे लिए जाते हैं। तीसरा जनाब ये है कि जो भी एफटी में आते हैं जो, तो वहाँ पर एक मैकेनिज्म नहीं है वो मॉनिटर करने का, जो वहाँ से मिस हो जाते हैं। जब अगर 100 लोग आते हैं, 100 बच्चे आते हैं, तो फिर अगले महीने या दूसरे महीने के बाद 100 के बजाय 50 ही आ जाते हैं। तो 50 को ट्रेस करने का जरूरत है कि एक पहले एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ताकि चार्जेस को आप रेगुलेट करें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। दूसरा उनको ट्रेस करने के लिए मैकेनिज्म है, जो एब्सेंटीज है, जो पहले महीने आए वहाँ का इलाज चल रहा है, लेकिन दूसरे महीने मिसिंग हो गई, फिर वहाँ से वापस आते नहीं है, क्योंकि उनको वही लत पड़ जाती है, उनको रिक्लेम वही जो होते हैं जो एक्सप्लॉइट करने वाले। तो इसमें जरूरत है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, और दूसरी बात है ये मैकेनिज्म एक है ताकि उनको ट्रेस करें जो एब्सेंट हो जाते। इट इज अ गुड सजेशन। हाँ साहब, मीर सैफुल्लाह साहब। सर ये जो ड्रग मैनेज का ये सवाल है, ये बहुत ही मुसीबत है, परेशानी है, खासकर कश्मीर की मैं बात करूँ। सर मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सही बात है, रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने कह दिया, उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये जो ड्रग्स जो अवेलेबल हैं, जहाँ से बच्चे लेते हैं ड्रग्स, मेडिकल शॉप्स पर अवेलेबल है ओपनली। मेडिकल शॉप्स से ये ड्रग्स बच्चे लेते हैं और इनको इस्तेमाल कंज्यूम करते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में कुछ महीने पहले 2 ऐसे बच्चे ड्रग्स की वजह से मर गए। उनकी माँ और बाप पुलिस स्टेशन पर गए, पुलिस को कहा कि इनको अपने थाने में रखो तब तक, ताकि इनका कोई कंट्रोल हो जाए। पुलिस ने उनको नहीं लिया, नतीजा ये हुआ दोनों बच्चे मर गए। एक 17 साल का था, एक 22 साल का था। मेडिकल शॉप्स पर अवेलेबल ये ड्रग्स हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। और स्कूल्स में ये ड्रग्स हैं, आपके स्कूल्स, हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और कॉलेजेस में
ड्रग्स अवेलेबल है लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब तक न इन चीजों का कंट्रोल किया जाए, रिहैबिलिटेशन सेंटर, हाँ और यही मैं कह रहा हूँ, कॉलेजेस में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ये ड्रग्स, कॉलेजेस में क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे हैं ये, स्कूल्स में ये इसके ये सर एक ऐसा एक माफिया बना हुआ है कि ये जो ड्रग्स लेने वाले जो खुद नहीं लेते लेकिन दूसरों को ड्रग्स देते हैं, इनकी बहुत सारी तादाद है जो इस वक्त है फील्ड में है, इनको ड्रग्स लेते हैं और कॉलेजेस में अवेलेबल करते हैं, स्कूल्स में अवेलेबल करते हैं इनको, और बाकी जगहों पर भी कहीं भी ड्रग्स। और ये अब एक दो नहीं, मुझे नहीं लगता हर गांव में कम से कम 50-100 बच्चे कम से कम मिनिमम, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए। यही हाल है पूरी कश्मीर का। मैं चाहूंगा कि इसको कंट्रोल कर लीजिए, कम से कम मेडिकल शॉप्स को कंट्रोल कीजिए, स्कूल्स पर कंट्रोल कर लीजिए, और बाकी जो ड्रग्स जो ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और बच्चों तक पहुंचाते हैं, नौजवान तक पहुंचाते हैं, उन पर कंट्रोल कर लीजिए। उसके लिए ये करने क्या जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन था मेरा लास्ट सेशन में जिसमें आपने रूलिंग दी थी, मैं चाहता हूँ आपकी रूलिंग रिकॉर्ड में दुरुस्त हो जाए। उसमें आपने कहा था मैं ये हाफ एन आवर डिस्कशन रखूंगा इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि वो कमिटमेंट आप पूरा करेगा, हाफ एन आवर या एक घंटा का हर नंबर इस बारे में बोलेगा। ये बड़ा सीरियस मसला है ड्रग्स का। ये गरीब गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी सीज की, अकाउंट सीज किए, इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन हाउस की ये हमने आपने कमिटमेंट की थी, हम इसका डिस्कशन करेंगे। एक हाफ एन आवर या 1 आवर डिस्कशन रखेंगे, वो अच्छा होगा। तनवीर साहब, सर पिछली असेंबली में मैंने एक बिल लाई थी जो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर के कहने पे वापस ली से। उसमें एक बहुत अहम चीज था कि जो प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसमें पढ़ाया जाए। लॉज इसीलिए बनते हैं कि सर जब हम बच्चों को बताएं कि अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे तो आपको खतरा है, उसी तरह जब छोटे बच्चों को पता चलेगा इसके इल इफेक्ट्स क्या है। तो मुझे लगता है सर मिनिस्टर साहिबा अगर हमें बताएं कि क्या प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस में कोई ऐसा करिकुलम में ये डाल सकती हैं ताकि जो ड्रग ये है उसके इल इफेक्ट्स क्या है। सर उसके साथ साथ बस एक चीज 2019 सर बस उसी के साथ 2019 से पहले और 2019 के बाद क्या कोई फिगर है हमारा कितना बढ़ गया 2019 के बाद, वो बताएं। हमने जो रिपोर्ट इसके बारे में बनाई थी, आप भी शायद उस कमेटी के मेंबर थे। एक कमेटी बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एज ऑर्गेनाइजेशन ड्रग एडिक्शन इसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। तो वो वेबसाइट पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेबसाइट पर है। उसमें पूरी रिसर्च करके हमने फिगर्स भी दिए थे और इसकी डायमेंशंस भी बताई थी, क्या डायमेंशन इस बीमारी की। अगर शौक है किसी को देखने का वो हमारे वेबसाइट देखे। मगर मुझे आपसे इत्तेफाक है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा हो गई है। हमारी जो आइंदा नस्ल है उनकी जिंदगी, उनका फ्यूचर खतरे में पड़ गया और इस तरह से कौम का फ्यूचर खतरे में पड़ गया। मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ। हम इस पर बात करेंगे, बात करनी चाहिए। अब सुनिए ना मेरी बात, मुबारक साहब ठीक कहते हैं। मैंने पिछले सेशन में कमिटमेंट की थी मैं अलाउ करूंगा इस पर डिस्कशन, मगर बदकिस्मती ये हुई लास्ट पर जो आखिरी 2-3 दिन थे जिसमें हमें ये डिस्कशन करना था, तो हाउस चला नहीं। आपका उसमें रोल था न चलाने में, हाउस न चलाने में आपका भी रोल था। अच्छा, इसलिए वो नहीं कर पाया मैं उस वक्त। तो इसलिए मैं सोचूंगा इस पर। इट्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इस पर बात करने चाहे हमें भी, आपको भी और मिनिस्टर साहबा को भी हम टाइम दे देंगे। ये भी उस वक्त इस मामले में तैयार होके आएगी। इस वक्त मैं आपको ये सिर्फ ये बताऊंगा, जहां तक सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का ताल्लुक है, हमारे रूल्स क्लियर हैं। 5 मिनट से ज्यादा किसी सवाल पर सप्लीमेंट्रीज नहीं पूछे जा सकते। मगर आप मानते नहीं मेरी बात, मैं क्या करूं। तो तारिक अहमद साहब अगर आधे मिनट में कुछ पूछना चाहते जल्दी। यस सर, मैं इस अहम सवाल पर जो बहस जारी है उस बारे में मैं सिर्फ इतना ही इजाफा करना चाहूंगा। यहाँ कितनी बहस हो, कितना कंसर्न है पूरे हाउस का, वो तो जाहिर है। सिर्फ एक गुजारिश है मेरी, लेकिन कौन सुने मुझे मालूम नहीं। ये एक नेक्सस है सर, आप बच्चों में, आप निसाब में रख लीजिए, पढ़ाइए।
सब कुछ पढ़ाइए, किसको मालूम नहीं है, किन वालिदैन को मालूम नहीं कि ये ज़हर है। वो बड़ा स्कूल है घर में ही, वो भी बच्चों को समझाते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से, कौन लोग इसमें मुलविस हैं, सप्लायर्स कौन है, और ये कैसे फैसिलिटेट किया जाता है बाय दोज इन अथॉरिटी, प्राइमरीली पार्ट ऑफ सम सेक्शंस ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। मुझे झिझक नहीं है ये कहने में, अनलेस उस तरफ नजर पड़े हमारी गुजारिश रहेगी, मैं एक शहरी होने के नाते उनसे गुजारिश ही कर लूंगा, आप और कुछ काम कर लें, वो अलग सवाल है, लेकिन ये जहर को तकवीयत देना, प्रमोट करना हमें कबूल नहीं, अवाम को कबूल। सलाशा साहब आप कुछ कर नहीं सकते, बहस अगर हम इस पर करेंगे मेरे ख्याल में आप इंतजार करो, मैं आप आधे मिनट बताए। सर आपने इसकी बात सुन के शायद ये जनाब 1.5 साल होने को है, हमने पहले ही इस ड्रग्स के बारे में मैंने सवाल दिया था, इस पर सारे हाउस ने कंसर्न शो किया था। आज भी वही स्थिति है कि जिसके मुताबिक आज फिर ये सवाल खड़ा। मेरा ये सिर्फ कहने का ये मकसद है सर कि मखसूस पैसा मेडिकल हेल्थ एजुकेशन को दिया जाए जिसमें ये सेंट्रल प्रॉपरली फंक्शनल हो सके, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एक दिन से पेशेंट की ओपीडी लगाने के बाद वो आप ये कहेंगे वो ठीक हो जाएगा, ये कम से कम भी 3 महीने का ट्रीटमेंट है। इसके लिए कम से कम वहां पे पैसा हो और 3 महीने के लिए उस पेशेंट को रखा जाए और उसको इससे दूर किया जाए, जिसकी वजह से ये सख्त जरूरत है। और मैं ये चाहता हूं कि इसमें कम से कम आप 1 घंटा की डिस्कशन रखिए जिसमें सब लोगों को बोलने का मौका मिले। अच्छी बात। हाँ मिनिस्टर साहब। सर सारे ऑनरेबल मेंबर्स का लगभग इसमें कंसर्न है और सभी ने जो सवाल पूछे हैं वो जेन्युइन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक यहाँ ऑनरेबल मेंबर सैफुल्लाह साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है कि जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ ड्रग्स आसानी से अवेलेबल है, इनको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेडिकल शॉप्स है उनमें ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने की है कि स्कूल्स में ड्रग अवेलेबल है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जिम्मेवार हाउस है और स्कूल में हमारी जनरेशन, हमारा फ्यूचर जो है वो वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर स्कूल्स में हमने पहले कुछ एनजीओज के साथ मीटिंग की थी जिसमें ऑलरेडी सारे हमने स्कूल एजुकेशन से जो वाबस्ता है, चाहे वो एचओडीज हो चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, उनके साथ मीटिंग करके हमने ये डिसाइड किया है कि ऑलरेडी सारे स्कूल्स में जो है सीसीटीवी कैमरा लग सके, ताकि शिकायत आ रही थी कि बाहर अगर कोई शॉप लगाता है और वो वहाँ पे बाहर से ड्रग बेचता है तो स्कूल के बच्चे कभी कभी आके उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर ऑलरेडी हमने काम किया है ताकि ये चीजें रुक जाएं, ऐसे कोई दुकान या ऐसे कोई रेड़ा जो है वो वहाँ पे ना लग सके, जिससे बच्चों का आसानी से ये इस्तेमाल जो है ड्रग के लिए मिल सके। इसी तरह एनजीओज के साथ हमने बात की। सर ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि आप तो ट्रीट करोगे, ट्रीट करना हमारा काम है, लेकिन रोकना जो है, जैसे ऑनरेबल मेंबर तारगामी साहब ने कहा है, इसमें जो होम डिपार्टमेंट है उनका मेन कंसर्न है। बाकी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसमें हमें जरूरी है कि आम लोगों को भी, जो उलमाज हैं, उनके भी हमें राय लेनी पड़ेगी, उनको भी हमें इसमें लाना पड़ेगा और सारे ऑनरेबल एमएलएज का भी कंसर्न होना चाहिए इसमें, जिस तरह है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी जनरेशन तबाह हो सकती है और हो रही है। लेकिन जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है ट्रीटमेंट करना, रिहेबिलिटेट करना, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का खुद का इसमें कंसर्न है कि किस तरह से हम रिहेबिलिटेट करें, किस तरह से इस बीमारी से बचाएं। दूसरा, जो तनवीर सादिक साहब ने क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने पिछली बार इस हाउस में एक बिल लाई थी और हमने इनको यकीन दिलाया था कि आप ये बिल वापस ले लीजिए, डिपार्टमेंट इस पे बिल जो है अपनी तरफ से लाएगा। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि बिल जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, तैयार है, और इस बार इस हाउस में हम उस बिल को लाएंगे ताकि अगर इस बिल से भी कुछ हम इसमें काम कर सके, रोक सके इस चीज को। तो डिपार्टमेंट में कोई ये चीज नहीं है, किसी का जाती नहीं है कि हम किसी चीज से पर्दा रखेंगे। जिससे हम किसी को बचा सकते हैं, जनरेशन को बचा सकते हैं, इसमें हम सबको काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे
अपोजिशन के लोग हो चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो, ये हम सबकी मिली जुली जिम्मेवारी है, ये हम सबका साझा मसला है, सिर्फ एक की जिम्मेवारी नहीं है। इसी तरह तनवीर साहब ने दूसरी बात की थी कि हम सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे कुछ चीजें हैं सिलेबस में, अगर और कुछ ऐड करने की जरूरत होगी उसके लिए ऑलरेडी कमेटी है, आप रिकमेंडेशन भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, हम कमेटी के सामने रखेंगे, अगर उनको लगता है कि ऐड करना चाहिए और कुछ चीजें तो जरूर हम ऐड करेंगे। शुक्रिया। इरफान हफीज लोन साहब, इरफान नहीं आपने आप इस पर बहस होगी, आपको भी टाइम दे देंगे उस पर। हाँ सर, AQ number 1071 sir. Minister in charge public works. Honorable Speaker, sir, AQ number 1071, Part A, the detailed project report for the construction of the Baba Rishi Gulmarg Road has been prepared at the estimated cost of rupees 4,034.25 lakh. The project is presently under examination. Part B, the estimate for the balance work for upgradation, macadamization and completion of the Dandmu Streesam Nagabal Road is under preparation. Hope the work shall be taken up under the appropriate head of account subject to availability of resources. सर अभी सर इससे पहले टूरिज्म को बूस्ट करने की बात हो रही थी, तो सर हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश होगी, ये बाबा ऋषि, हाजीबल, नंबलनार, ग्रेडबल दजी सर और बाकी चूंट पथरी गांव है और आगे फजपुरा मुलबांगिल भी इसे जोड़ा जा सकता है। सर ये शॉर्टेस्ट रूट होगा बाबा ऋषि से गुलमर्ग के लिए, एक ऑल्टरनेटिव रूट, तो हम उसमें इनसे गुजारिश ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से करेंगे कि इसे तरजीहात में रखे। अवाम उन्नास के साथ साथ ये सर टूरिज्म के लिए भी एक सिग्निफिकेंट है सर, फायदेमंद है। दूसरा सर, आई एम कंक्लूडिंग सर, दूसरा ये जो सत्र सीरन नागबल रोड है सर, हमारा सर जो रोड कनेक्टिविटी है आज के इरा में सर ये एक जेन्युइन डिमांड है, तो सिंस लॉन्ग दे आर पेंडिंग, तो इन्होंने सर इसमें कहा कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो हम चाहेंगे इनसे कि कीपिंग इन व्यू लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, तो फंड्स को एंश्योर किया जाए। थैंक यू सर। सर जावेद हसन बेग, सवाल इसने पूछा नहीं, इनके सजेशंस है, ये कहते हैं कि बताना चाहता हूं कि इसमें जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोड जो इन्होंने बताया है, और ऑनरेबल सीएम साहब ने जो पीछे बारामूला में जो रिव्यू मीटिंग हुई, इन्होंने बोर्ड की मीटिंग ली, उसमें इन्होंने डायरेक्शन दी थी, तो इसका प्रोजेक्ट का जो हमने गुलमर्ग, ये बाबा ऋषि गुलमर्ग रोड जो है, इसको हमने जो मैंने बताया एस्टिमेटेड कॉस्ट जो 4,034.25 लाख की बनाई है, और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं और देखते हैं अब किसी हेड में डाल के इसको करेंगे ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। अच्छी बात। हाँ जावेद हसन बेग साहब, AQ number 396 सर, मिनिस्टर इन चार्ज पब्लिक वर्क्स। अभी शुरू तो करने दो मुझे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, AQ number 396, Part A, yes sir. Part B, yes sir, the government has taken due cognizance of the judgment. The Public Works R&B Department is undertaking construction, upgradation and systematic maintenance of road infrastructure across the UT under various central sector schemes and UT sector schemes. In furtherance of this mandate, the J&K Road Policy 2021 has been notified to ensure assured funding, transparency and planned maintenance. Roads are being planned and executed as per the IRC standards within built safety provisions such as crash barriers, signage, road furniture, identification of accident-prone locations, and mandatory maintenance during and after construction. Special emphasis is laid on connectivity to remote, hilly and inaccessible areas to ensure equitable development. The Directorate Investigation and Quality Control Wing of the Public Works Department, Jammu and Kashmir is mandated to ensure planning excellence, technical soundness and uncompromising quality in the creation of maintenance of the road and bridge infrastructure. The DIQC functions as the apex technical authority for investigation, vetting,
quality assurance and standardization of works executed by the department. In furtherance of the constitutional objective of the free and unhindered movement of people, goods and service, as the DIQC ensures that the road infrastructure across the Union Territory is safe, durable, reliable and serviceable in all seasons throughout supporting economic activities, social inclusion and regional integration. Part C, a structured and phased approach is being adopted for road development through flagship schemes such as PMGSY, CRIF, NABARD, and UT CAPEX in accordance with the J&K Road Policy 2021. Projects under these schemes are formulated through annual action plans, ensuring prioritized, need-based, and region-balanced planning. The planning, sanctioning, and execution process are time-bound and subjected to the regular review and monitoring to ensure timely completion and delivery of safe, durable, and all-weather road connectivity across the Union Territory. Also, the quality of road work is ensured through a full-fledged wing under the Public Works Department, namely the Directorate of Design and Quality Control, which is responsible for technical vetting, quality assurance and compliance, and prescribed standard quality of roads is ensured by full-fledged wing under the PWD Department. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैंने जो ये क्वेश्चन लाया है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है. वेल मेंटेन्ड एंड मोटरेबल रोड्स forms an integral part of the fundamental right to life under Article 21 of the Constitution of India. इस क्वेश्चन की अहमियत सिर्फ क्वेश्चन पूछने की वजह से नहीं है सर. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसकी जो वायलेशन हो रही है डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे मुल्क के कई इलाकों में होगी, लेकिन मैं बात जम्मू कश्मीर की करता हूँ. मेरा इलाका जो है दिलना से लेकर बारामूला तक इस वक्त वाटर लॉगिंग एरिया है और ये नेशनल हाईवे है, ये बीकन के अंडर है. जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो रियासत की जिम्मेदारियां हैं वो अलग हैं और जो सेंट्रल के रोड होंगे या डिफेंस के रोड होंगे उनमें जो लोगों की खस्ता पुरसी होगी उसको कोई नहीं पूछेगा. मेरा पहला सप्लीमेंट्री ये है कि जो रोड्स इस वक्त जिनकी हालत खस्ता है उनकी अपग्रेडेशन के लिए आपने बताया, लेकिन इस जजमेंट के हिसाब से जिस तरह के रोड आपने प्रोवाइड करने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके लिए आपके पास जो बजट है उसमें वो आप सारे का सारा एकोमोडेट नहीं कर सकेंगे. इस जजमेंट को ग्राउंड बनाकर क्या हमारी हुकूमत ने, क्या हमारी सरकार ने इस जजमेंट की बुनियाद पे ये मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उठाए हैं कि चूंकि अब ये फंडामेंटल राइट बन गया है मोटरेबल और अच्छा रोड देना, चूंकि ये आपके बुनियादी हुकूक का हिस्सा बन गया है, इस वजह से अब जो नॉर्मल फंडिंग होती है डिफरेंट हेड्स में, क्या उसमें आप ये सारा कवर कर पाएंगे? अगर हाँ तो फिर आप एश्योर करें, अगर नहीं तो क्या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस जजमेंट की लाइट में आप कोई ये उठा रहे हैं उस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि आपको जो सामने इस जजमेंट की लाइट में जो चैलेंजेस होंगे उनका सामना किस तरह से किया जाएगा? मेरा पहला सप्लीमेंट्री ये. इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड दिस विल बी द ओनली सप्लीमेंट्री. ओके, ये अब करना आपने और भी. ऑनरेबल स्पीकर सर, जो ऑनरेबल एमएलए साहब का कंसर्न है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे इस सरकार का भी और इस डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी कंसर्न यही है कि लोगों को अच्छी सड़कें मुहैया कराई जाएं, चाहे वो खाली शहरों में नहीं बल्कि दूर दराज उन पहाड़ों पे भी जो लोग 4-4 घंटे 3-3 घंटे पैदल चल के सड़कों तक पहुंचते हैं उनको भी नजर रखा जाए. और सरकार खाली ये नहीं कि हम इस वादे पे हैं कि सड़कें बना दी, ब्लैक टॉप कर दी, बर्बाद खत्म हो गई, बल्कि सरकार इस वादे पे टिकी हुई है जो वादा हमने किया हुआ अपने लीडर की क़यादत में कि हम हर घर तक सड़क पहुंचाएंगे. कोई शक नहीं कि जब हमने ये सरकार संभाली, मेरा कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने जब इससे पहले भी 2014 से पहले हुकूमत संभाली थी तो उसमें एक फुल फ्लैश स्टेट था, फंडिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, जिसमें ऑनरेबल स्पीकर साहब आप खुद भी एक
फाइनेंस मिनिस्टर थे जहां हमें पैसे की कोई तकलीफ नहीं आती थी, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। आज हम यूटी के अंदर हैं और जब दिल्ली से पैसा आता है हमें स्टेट के मुताबिक नहीं आता बल्कि एक यूटी के मुताबिक आता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिपार्टमेंट, मेरे ऑफिसर्स पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ऑनरेबल एमएलए साहब को कॉन्फिडेंस में लेके जहां जहां भी हमसे हो सकता है कि हम इनको अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि सही मायने में लोगों की आवाज ऑनरेबल एमएलएज हैं जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए और ये बार बार अपने हाउस में भी ये बार बार कहते हैं कि हम 1 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं। और जब ये 1 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं तो हम लोग जो सरकार है ये भी लोगों की नुमाइंदी है और ये ऑनरेबल सीएम साहब पूरे जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं। तो इसलिए आप जब सड़कों की हम बात कर रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उसको कहीं हम नजरअंदाज नहीं कर रहे, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा हमारा कोर्ट है, हमारा अदालत है, हमारी पंचायत है, यहाँ से जो फैसला आएगा हर सरकार को मानना है और इंसान को मानना है, वो हम मानते हैं। उसी लिहाज से जब ये सरकार बनी और आते साथ ही हमने अपने PMGSY सड़कों के लिए हम ऑनरेबल सीएम साहब का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने दिल्ली में जाके PMGSY के लिए 316 सड़कें वहां से अप्रूव करके लाए, जो काफी सारी सड़कों का काम शुरू हो गया है, कुछ का स्टार्ट हो रहा है और कुछ कोर्ट में लिटिगेशन के कारण रुकी हुई हैं। और वो भी मैंने डायरेक्शन अपने डिपार्टमेंट को दे दी है कि इसको कोर्ट से जल्दी, अपने जो हमारे वकील हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, वो जल्दी से जल्दी इसको वहां से वेकेट कराएंगे क्योंकि जल्दी ये काम शुरू हो सकें। उसके साथ साथ सर हमने जो नबार्ड का है, जो स्कीमें आई ऑनरेबल सीएम साहब के, जो हमें दिल्ली में जाके उन्होंने जो मेहनत की, जो वहाँ डिस्कशन थी, उसके बाद हमें जो नबार्ड का पैसा आया उसके मुताबिक हमें काफी सारे नबार्ड का पिछली बार भी स्कीम्स आई, लेकिन इस बार ही जब ऑनरेबल एमएलए साहब जब कह रहे थे कि आप दिल्ली से पैसा भेजते हो, नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कभी इस बार हमने 1,000 करोड़ का पूरा बनाया था, जो अलग अलग सड़कें ऑनरेबल एमएलए साहब से ली थी, लेकिन बदकिस्मती जब वो पैसा हमारा वहां से आया तो हमें 1,000 करोड़ के बदले सिर्फ वहां पे 450 करोड़ पे हमें मिला, जिसके कारण ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो वादे अपने, ये खाली इधर नहीं दोनों साइड की बात है, ऑनरेबल एमएलए साहब ने जो वादे अपने अपने इलाकों में किए थे थोड़ा सा उसमें मुश्किल आई। तो होगी खत्म, बोले मिनिस्टर साहब आप। इसलिए जब हम ये बात करते हैं सर, ये जो हम आए सर, आपका तो सवाल ही नहीं है पवन जी, सवाल तो इधर से आया है, पवन जी का तो सवाल ही नहीं है। बोलिए आप जवाब दे दिया। मनकोटिया साहब का सवाल था, वो मेरे चैम्बर में आ जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे जो इन्होंने पूछा था शुरू में। तो पवन जी को भी आया तो वो भी मेरे चैम्बर में आ जाए, आपसे बात कर लेंगे। अब ये जवाब सवाल इनका मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। नहीं सर, इनको भी थोड़ा कर लेना सर। नहीं, इनके साथ बात करो, मेरे साथ बात करो। ऑनरेबल स्पीकर सर, इसलिए आप भी इस बार भी हमने PMGSY का जो पैकेज हमारा अब जाना है उसके लिए काफी सारा हमने प्लान किया और काफी सारी हैबिटेशन उसमें ली हैं, जिसमें हमने हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं इन्होंने काफी सारों ने मेहनत की, अपने अपने ऑफिसर्स को काम पे लगाया और काफी दूर दराज में जो PMGSY का सही फायदा होना चाहिए उसके लिए किया है। हमने नबार्ड के लिए भी सर अपना प्लान बनाया है, अभी और एडिशनल भी ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है और ऑनरेबल एमएलए साहब को कहा है कि आप हमें दे दीजिए और कोशिश करेंगे दिल्ली से पैसा लाने के लिए। और एक चीज मैं और कहूँ सर, लास्ट 2-3 साल से CRF का पैसा कभी नहीं आया जम्मू कश्मीर में। इस बार हम ये कोशिश करेंगे और उसमें ऑनरेबल सीएम साहब की भी हम मदद लेंगे दिल्ली के अंदर, और आप सबसे भी मदद लेंगे ताकि CRF के जो प्रोजेक्ट आपने दिए हैं उसमें आप भी मदद करें, हम भी कोशिश करेंगे ताकि CRF के प्रोजेक्ट आ जाएं, जिससे आप जो दूर दराज का जो जिक्र ऑनरेबल एमएलए साहब कर रहे हैं, जो इनका कंसर्न है जावेद बेग साहब का, और वो भी उस मेरे ख्याल CRF में भी काफी सारा मसला हल होगा। तो लिहाजा ओवरऑल यही है, मैं सर कहूंगा कि जहां तक हमारा अपना ये जो गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो आपने सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने जिक्र किया, उसने एक पॉलिसी जो नोटिफाइड की हुई है, जम्मू एंड कश्मीर रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025,
White Government Order number 21-JK (TR) dated 13th of March 2025 को और पॉलिसी का एम यही है कि जो हमारे रोड एक्सीडेंट हैं वो कम हो जाएं और जो हमारे लोगों को एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और वो ऐसी सड़कें दी जाएं। हमें पता है कि डोडा चिनाब वैली में काफ़ी सारी मुश्किलें इस रोड के कारण आती हैं, खिता पीर पंचाल के अंदर भी काफ़ी आती हैं। अब खिता पीर पंचाल इनको पसंद नहीं, लेकिन हमारे लिए खिता पीर पंचाल बहुत प्यारा है, तो लिहाजा हमारी यही कोशिश रहेगी चाहे वो खिता पीर पंचाल है चाहे खिता चिनाब वैली है, दोनों को बराबरी का हिस्सा दिया जाए और जम्मू हमें ये हिस्सा देगा, ये उम्मीद जम्मू के लेजिस्लेटरों से हम उम्मीद रखेंगे, तो लिहाजा हमारी ये पूरी कोशिश है। श्री चंद्र प्रकाश जी टाइम खाता है। नंबर 415 हाँ बैठ जाओ यार। तब पैसों की कमी नहीं थी और जब से यूटी बनी है तब पैसों की बड़ी कमी हो रही है। तो मैं ऑनरेबल मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि अभी जो यूनियन बजट पास हुआ है उसमें लगभग 43,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को मिला है। तो ऑनरेबल सर AQ नंबर सड़कों का सवाल है सब। AQ नंबर 415 ऑनरेबल स्पीकर सर मिनिस्टर इंचार्ज PDD AQ number 415 Honorable Speaker Sir, the division wise detail of budgetary provisions allocations made for sports sector in the state of J&K under CAPEX along with the details of allocations made for Samba district is enclosed as an exhibit. The following works playfields have been being developed in Vijaypur constituency. First, development of playfield at Katwalta, chain link fencing at Government High School Taror around synthetic handball court, playground at Raya Mode, Panchayat Halka Patti, sports stadium at Birpur, kickboxing ring at Panchayat Bagla, construction of playground at Raya Mode, Panchayat at Halka Patti. हाँ मिनिस्टर Sir, the division wise allocation under CAPEX budget 25-26 is detailed as under. ये है इनके पास, ये इन्फॉर्मेशन इनके पास है। टाइम हो गया। ये सवाल पूछे सर ऐसा है कि मैंने पिछली बार भी असेंबली में ये कहा था कि हमारे सलमेरी में एक प्ले ग्राउंड बनी है, उस पर कम से कम 3.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसको कोई रोड नहीं है और वो बिल्कुल दोबारा से जंगल बन गई है, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। देखिए आज जितनी भी बहस हो रही है वो जनरेशन को बचाने के लिए हो रही है, स्पोर्ट्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान है और मैं ये चाहता हूं कि मैं ऑनरेबल स्पीकर सर के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर सबसे बड़ी जरूरत है जो सेंटर बना रहे हैं कि बच्चों को हम डी एडिक्शन से बचाएं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हर ब्लॉक पे हम 2-2 योगा टीचर दे दिए जो हर गांव में जाके लोगों को योगा सिखाएं। और ऑनरेबल स्पीकर सर, बहुत अच्छा सुझाव है हमारे माननीय विधायक जी का। सर बारिशों ने कुछ ऐसा कहर ढाया कि वो जो आपने रोड का जिक्र किया वो भी हम करेंगे। दूसरी एक सर ड्रग्स पे जो उन्होंने बात की, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सर ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। पहले तो ये वबा कौन लोग मुलव्वस है, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे वो सियासतदान है। मेरे इलाके में जो नशा करते हैं 2 लोग आइडेंटिफाइड है, एक वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का बहुत बड़ा लीडर शायद देता है सर। तो कहने का मतलब ये है कि उनको आइडेंटिफाई करना है और मैं कोशिश करूंगा हर असेंबली हल्के में ज्यादा से ज्यादा प्ले फील्ड्स आने वाले दिनों में, खास करके जो बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान हो चाइना हो, वो हमारी जनरेशन 67% हमारी। क्वेश्चन आवर इज ओवर मिनिस्टर साहब, क्वेश्चन आवर खत्म हो गया।